Okay, okay. MCQ for 23rd November 2020 from Hindu newspaper analysis as well as other information for your PT examination point of view. Okay, SITMAX, SITMEX. What is syntax on the question form? Okay, on the PT question form. SITMAX, SITMAX, SITMEX. SITMAX is a maritime exercise between the navies of which of the following countries. इस क्वेश्चन को कहते हैं सिटमैक्स। सिटमैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में एक समुद्री एक्सरसाइज है? दिस इज हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, सिटमैक्स इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सिटमैक्स जो है निम्नलिखित में से किन सेनाओं के बीच एक समुद्री एक्सरसाइज है। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री। 5 कंट्री दे रखे हैं, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड मालदीव्स। इंडिया इज ए टचिंग कंट्री विद बे ऑफ बंगाल। ओके, इंडिया टच with Bay of Bengal and Singapore. Okay, please move to the maps. मैप से आप देखिए, अगर आप देखना चाहें तो मैं कैमरे को थोड़ा सा इंप्रूव करता हूं और आप देखें थोड़ा सा ध्यान से। पे अटेंशन प्लीज। थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, और जूम करने के साथ साथ आप थोड़ा सा इधर फोकस करें। ओके, देखें ध्यान से। दिस इज इंडिया। ओके, India and Singapore is here. Singapore is here. Singapore is totally on. Singapore is totally on equator. Singapore is on equator. Okay. Singapore near to the equator. Okay. Maldives is here. Where Maldives? Maldives is here, island country. Okay. But India, Singapore, Thailand is located in Southeast Asia. Malaysia nearby Singapore. Okay, so all the maritime countries with India, all the maritime countries with India, okay, involved in maritime exercise. With India, Singapore, okay, India, Singapore, and Thailand. Okay, India, Singapore, and Thailand. SITMAX is trilateral. SITMAX, India, Singapore, and Thailand. Not Maldives and not Malaysia and Maldives. Okay, not Malaysia and Maldives. Malaysia is not included in trilateral exercise because SITMAX is a trilateral maritime exercise between India, Singapore and Thailand. Okay, Malaysia and Maldives is not included here. Okay, first exercise commenced by in 2019 by India. पहली जो एक्सरसाइज हुई थी वो भारत के द्वारा कंडक्ट की गई थी, होस्टेड की गई थी 2019 में, 2019 में। क्लियर है चीज? अभी नहीं है, पूछी जाने की संभावना पूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कमांडेंट एग्जाम में, आईएएस वगैरह में मैचिंग फॉर्म में दे देगा, ठीक है, इसलिए आप इसको देख लो। एडीएस सीडीएस वगैरह में तो पॉसिबल है। फर्स्ट एक्सरसाइज कमेंस्ड बाय इंडिया इन 2019 बाय इन 2019 एंड 2020 हर साल होती, ध्यान कर लो। 2020 एक्सरसाइज होस्टेड बाय रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर में भी। 2019 में भारत ने कमेंस की, होस्टेड की। 2020 में सिंगापुर रिपब्लिक ने को होस्टेड की। तो आप ये देख सकते हैं हर साल होगी सिटमैक्स एक्सरसाइज। फिर से एक बार रिवीजन करता हूं पीटी के लिए, बिकॉज पीटी एग्जामिनेशन इज वेरी फ्लैक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, समथिंग नंबर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट्स इंसर्टेड इन क्वेश्चंस एंड ओके some right information inserted in question. Okay, which information is right and which information is wrong, this is choice by you in any question regarding PT examinations. Okay, SITMAX is a trilateral exercise between India, Singapore and Thailand. First exercise is commenced in 2019 by India and 2020 exercise hosted by Republic of Singapore Navy. Okay, and second question, this is first question and second question from today's Hindu newspaper. Okay, consider the following pairs. INS Komarta matching the following. INS Komarta एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील कॉवर्टी है, बिल्कुल ठीक है। INS कारमुक
कॉवर्टी कॉवर्टी है। आईएनएस कारमुक मिसाइल कॉवर्टी है, समझ गए। आईएनएस जो है इंडियन नेविगेशन सिस्टम होता है, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ओके, भारतीय नौवाहन प्रणाली हिंदी में कहते हैं। इंडियन नेविगेशन कलवरी एक जो पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, बिल्कुल स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस क्वेश्चन है ओनली फर्स्ट, नहीं ये गलत। फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं ये गलत। 2 एंड 3 ये भी गलत। तो क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मैचिंग। ओके, 1, 2 एंड 3। So D is the correct answer from here. And third question from here, very important question related to geography portions. Very important question related to geography portions. Okay, let's. The originates. Consider the following statement regarding ब्रह्मपुत्र river. ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, ये इसकी हिंदी हो गई। It originates in Tibet and is known as the Yarlung Tsangpo there. इसका उद्भव तिब्बत में होता है और यहाँ यार्लुंग तांग्सपो के नाम से जानी जाती है। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसका उद्भव जो है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम इन तिब्बत नियर बाई मानसरोवर लेक। ओके, नियर बाई मानसरोवर लेक फ्रॉम यार्लुंग तांग्सपो देयर। ओके, इट इज क्लियर। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड्स, नदी पूरब की ओर बहती है थ्रू साउदर्न तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत से, एंड मेक्स ए यू टर्न। ये यू टर्न वाला क्वेश्चन आईएएस 2001 में पूछा गया है, 2011 में। मैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो रहा हूं, अभी बार देख लेना। यू टर्न एट द शोमाटन पॉइंट बिफोर इट इंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मतलब, कहने का मतलब यह है, नदी 1665 किलोमीटर चल के तिब्बत से ऐसे पूरब की ओर जाती है और अरुणाचल प्रदेश से यूं कटती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, आपको पता है। वहां से टर्न होते हुए आसाम में आती है, आसाम से आके बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा इससे मिलती है तो फिर आगे मेघना से मिलती है। पद्मा मेघना बना के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्लियर है चीज? ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द रिवर आल्सो फ्लो थ्रू बांग्लादेश। यस, बी earlier explained, the river also through Bangladesh. yes, ये बांग्लादेश से भी जाती है। देखो ध्यान से, ये हम एक मैप बना रहे हैं, इंफॉर्मेटिव मैप है, इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ये यहां अरुणाचल प्रदेश है, ये यहां अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? एपी। एपी के नीचे ये यहां असम है। क्या है? असम। ओनली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया। असम के नीचे जैसे आप यहां आओगे, असम के नीचे जैसे आप यहां होगे, ऐसे ये असम से आके बांग्लादेश इसको मिलेगा। बांग्लादेश एंट्री करते इधर से गंगा आएगी, गंगा इससे मिल जाएगी, पद्मा के नाम से जानी जाएगी। फिर आगे इसको मेघना एक रिवर ज्वाइन करेगी, पद्मा मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना? दिस इज इंफॉर्मेशन। प्लीज नॉट अटेंशन हियर। ओके, प्लीज नॉट अटेंशन हियर। दिस इज ओनली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ए ड्राइंग। ओके, नॉट इट इज ए ड्राइंग। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप सही और गलत इंफॉर्मेशन को पहचानना सीखें, बस यही चीज है। यूपीएससी को द्वारा दी हुई या किसी कमीशन के द्वारा दी हुई पीटी में सारी इंफॉर्मेशन सही हो, ऐसा बड़ा संभव होता है। ध्यान कर लेना, उसमें से सही गलत आपको छांटना होता है। प्लीज रिमेंबर ऑल द डेट्स। कई बार छात्र क्या करते हैं, पीसीएस वगैरह में ऐसे दे देता है, तो आपको मिस्टेक नहीं होना। प्लीज रिमेंबर ऑल द डेट्स। द अगस्त ऑफर कब आया था? 1940। Okay, the cabinet mission plan came in 1946. The Cripps mission plan came in 1942. Okay, the Babel plan, some books read in 3rd June 1945, and some books read in 14 June 1945. Okay, 14 June 1955 written in some books. खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1922, 1990 to 1922, and non-cooperation movement in 1920 to 1922. In case of condition, any questions asking by the commission, okay, then non-cooperation is the second option. Okay, then asking between the Khilafat movement and non-cooperation movement, then Khilafat is the first in chronological order. Okay,
then Khilafat will be the first in chronological order of ठीक, and then 1922, and then non-cooperation movement, because non-cooperation movement in 1922, because non-cooperation movement started in 1920 and Khilafat movement started in 1919. Okay, Khilafat movement started in 1919 and non-cooperation movement started in 1920. Okay, but incident of Khilafat movement was occurred only first. Civil disobedience movement ठीक happens in 1930. This is known as सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन in 1942, 8 August started from Bombay. 8 August 1922 started from Bombay. Slogan "Do and Die" given by M.K. Gandhi. Okay, M.K. Gandhi. Lucknow Pact basically signed by Muslim League. Okay, Indian National Congress. Okay, and two, basically Lucknow Pact meeting of the three major parties, that is extremist parties, extremist conflict of the Congress, extremist sect of the Congress, okay, and moderate sect of the Congress, and Muslim League. Basically all the parties, extremist party of the Congress and moderate party of the Congress and Muslim League signed in 1916 Lucknow, which is known as Lucknow Pact and Lucknow session of Indian National Congress. Okay, Indian National Congress. Basically all the information regarding PT examinations done from here, from today's class. Okay, thanks for watching.